Panawajeng narwai orang nasi itu. उपस्थित है माननीय जनजाति कल्याण मंत्री त्रिपुरा सरकार श्री विकास और उपस्थित के बाद वो भगवान विष्णु छवि पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आइए हम सभी एक साथ खड़े होकर श्रद्धांजलि को अपना योगदान साथ ही सभी मेहमान अतिथि का आज के कार्यक्रम में अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। Siapa orang yang mau boleh bahasa ni bang ni? Contohnya bahasa lain tak mesti hay. Siapa mula dari bahasa kuai bahasa जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सभी से निवेदन करेंगे मैं जोरदार तालियों के साथ अपना योगदान देंगे सादर अभिनंदन करें। अब मैं जनजाति विभाग पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता के तहत सत्यराम CPR SSU yang di pasai tongai rok no koinai buksa acuk thai tora to yang khasing busang no kaisa kaini nugu buksa acuk thai tai sakawo khabai koi sakra rok basawi to go norok kisa sirni acuk thai yo acukni sakra rok no acuk thai dekha ke belai no chane अतिथि खड़े हैं। आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आपको जहाँ कहीं भी खाली सीट मिलती है आप प्लीज वहाँ पर बैठ जाएं। basawi sakra rok ni sem acuk thai belai बहुत जल्द ही वो आएंगे। इसके पहले आप सब लोग, आज पूर्णिमा का दिन है, आज गंगा स्नान का भी दिन है और सभी लोग गंगा स्नान करके पूर्णिमा के Ti khorsa tongo Toluwala Deborma Mandai Block ni Borobo Ayushman Card Baksa ki tongo अपनी यागलो आबा के उस योगदान को, उस बलिदान को हम नमन करते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और आभार माननीय प्रधानमंत्री। तबुनी बेचबो अमरजीत देवबर्मा बेलबाड़ी ब्लॉक नी बरकनो आयुष्मान भारत नी तान बेचबो बरकनो आयुष्मान कार्ड याफर चाकनाय बरक वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट नी 150তম আমাদের জনজাতি গৌরব দিবস। আজ এই জনজাতি গৌরব দিবসের উদ্বোধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দিনটিতে আমি আপনাদের সামনে আমার কৃতজ্ঞতা এবং গভীর উপলব্ধির সাথে হাজির হয়েছি। এই বছর জনজাতিদের ভগবান হিসাবে পরিচিত স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সৈনিক বিরসা মুন্ডা 150তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 15 নভেম্বর 2024 থেকে 2025 জনজাতি গৌরব বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং বর্ষব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের রাজ্যের এই জনজাতি গৌরব বর্ষে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের জনজাতি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থসামাজিক উন্নতি, জনজাতি এলাকার সার্বিক বিকাশ, চিরাচরিত ঐতিহ্য সংরক্ষণের আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছে। আমি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার দূরদর্শী নেতৃত্বের জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। ওনার নেতৃত্বে সমাজের ব্যাপক অর্থে আর্থসামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের সকল আন্তরিকতা সুনিশ্চিত করেছে। রাজ্য সরকার জনজাতি জনগোষ্ঠীর অর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষভাবে সচেতন এবং জনজাতিদের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিকে সার্বিক গুরুত্ব সহকারে বাস্তবায়িত করে চলছে। নতুন নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়ার পাশাপাশি জনজাতি উন্নয়নের বিভিন্ন চালু প্রকল্পগুলিকে পর্যালোচনা করে সময় এবং পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে আরও বাস্তবমুখী করে তোলা হয়েছে। জনজাতি জনগোষ্ঠীর শিক্ষার প্রসারে লক্ষ্যে ছাত্রাবাস বৃদ্ধি, পাক মাধ্যমিক বৃত্তি,
মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি, মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি পরিপূরক বৃত্তি প্রদান, বিনামূল্য পাঠ্য বই সরবরাহ, মৌলিক বিষয়ের উপর বিশেষ কোচিং ও মাধ্যমিক ড্রপ আউট কোচিং প্রদান, ত্রিপুরা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার রেসিডেন্সিয়াল এডুকেশন ইনস্টিটিউশন সোসাইটির মাধ্যমে একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল এবং আশ্রম স্কুল পরিচালনা করা, মেধা পুরস্কার প্রদান, শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কর্মসূচি সফল বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। मंत्री त्रिपुरा सरकार आदरणीय विकास देव वर्मा जी, हमारे क्षेत्र के प्रदेश के मंत्री शुक्लाचरण नोएडा साहेब, हमारे प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष एवं सांसद राजीव भट्टाचार्य जी, क्षेत्र की सांसद और मेरी बहन राजकुमारी कीर्ति देवी देवबर्मन जी, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, अपने दिल के करीब, अपने आत्मा के करीब सदैव जल, जंगल और जमीन को माना है। और अगर आदिवासी समाज की प्रथा, अगर आदिवासी समाज की विचारधारा, अगर आदिवासी समाज के सिद्धांत, अगर आदिवासी समाज के मूल्य को आज भी अगर विश्व ने माना होता, अगर माना होता, तो ये जलवायु परिवर्तन की जो युग आई है, ग्लोबल वार्मिंग की जो युग आई है, वो इस पृथ्वी पर कभी ना आती अगर आदिवासी समाज की प्रथा और मान्यता को हम जग जाहिर रखते। हमारे समाज का इतिहास बुलंद है। चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी की हम बात करें, जिन्होंने अपने जीवन काल में केवल आदिवासी समाज के लिए नहीं, लेकिन भारतवर्ष के जन जन के लिए क्रांति की लड़ाई लड़ी थी। सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया था। बंगाल प्रेसिडेंसी में, जो वर्तमान का झारखंड राज्य है, और अंग्रेजों के खिलाफ एक ज्वालामुखी की तड़प के साथ भारत माता के झंडे को बुलंद करने के लिए अपनी जान की भी बलिदान देती थी। चाहे नाना भाई खांड की हम बात करें, जो आपके समाज के हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई ज्योति का प्रकाश पूरे देश के कोने कोने में लाया था। हम महिलाओं की बात करें तो कालीबाई की बात करें, राजस्थान के डूंगरपुर में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध भूमि में अग्रसर होकर लड़ी थी। 12 साल की उम्र में बालिका के रूप में भारत माता की आजादी के लिए हाथ में तलवार लेकर विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ जय घोष का नारा लेकर युद्ध भूमि में निकली थी। भारत को विश्व गुरु के रूप में उभारने वाला सफर होना चाहिए, और इस सफर में मेरे एक आदिवासी अनुसूचित जनजाति के भाई बहन का योगदान रहे। इस भारत माता की ज्वालामुखी को विश्व पटल पर उजागर करने के लिए इसी कामना के साथ भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में नमन करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरा आदिवासी समाज। माननीय 10 वर्ष में क्या
जहां एक दल केवल अपनी पार्टी की बात करती थी, जहां भगवान बिरसा मुंडा को, रानी दुर्गावती को, कालीबाई को, सबरी माता को इतिहास के पन्नों से उठाकर कोने में धूल चटाने के लिए छोड़ दिया था, उन भगवान बिरसा मुंडा को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे भाई और बहनों, हमारे परिवार के परमवीर चक्र विजेता एल्बर्ट टिक्का आदिवासी समाज के, उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए हमारे अंडमान में एक द्वीप का नाम उनके नाम पर रखा गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और प्रधानमंत्री जी ने राज्य में, प्रदेशों में, केंद्र में हमारे आदिवासी समाज के नवरत्नों को मंत्री पद का स्थान देकर, राज्यपाल का स्थान देकर विश्व पटल पर आदिवासी समाज का नाम जग जाहिर करने का काम किया है। और इतिहास में पहली बार हमारे भारतवर्ष में पहली बार अगर राष्ट्रपति कोई बनी है तो हमारे आदिवासी समाज की परम आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज की बनी है। मेरे भाई और बहनों, रानी दुर्गावती जिनका 500 वर्ष का जन्म जयंती हम मनाने जा रहे हैं, जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध भारत माता के झंडे को बुलंद किया था, राणा पुंजा भील जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध मैदान में महाराणा प्रताप का साथ दिया था, ये आपके आदिवासी समाज की पूंजी है। मेरे भाई और बहन, आपका इतिहास विस्तृत है, आपके इतिहास के बिना भारत का इतिहास अधूरा है। और उस शबरी माता को भी मैं नमन करता हूं जिन्होंने राजकुमार राम को पुरुषोत्तम राम के रूप में संवारा था। उस सबरी मैया को भी इस मंच से मैं प्रणाम करता हूं। हमारे आदिवासी समाज के लिए देश की आजादी के बाद जब हमारा समाज पिछड़ता गया, अर्थव्यवस्था से कटता गया, विकास और प्रगति से अछूता रह गया, 2014 में एक परिवर्तन आई। सदियों से मेरा आदिवासी समाज की आवाज को दबाया जा रहा था कांग्रेस के शासनकाल में, और 2014 में भारत माता के एक ऐसे सपूत ने आपके आशीर्वाद से देश का नेतृत्व संभाला, जिनके मुंह से शब्द निकले कि जिनको कोई भी नहीं पूछता है उन्हें वे पूछेंगे और वे उन्हें पूजेंगे भी। ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं हमारे आदिवासी समाज के प्रति। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.